اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی محض 6 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس میرے سب سے چھوٹے دیور عثمان کو میرے کمرے میں لے آئی۔ 16 سال کا عثمان کچھ شرمایا ہوا سا میری ساس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری ساس مسکراتے ہوئے بولی، جب سے تمہاری سکندر سے منگنی ہوئی ہے تب سے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میری بھابھی سے دوستی کروا دو۔ ساس نے مجھے مزید بتایا کہ منگنی کے بعد فوراً شادی کی وجہ سے عثمان کو یہ موقع ہی نہیں ملا اور پچھلے 3 دن سے اس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ ماں میری بھابھی سے دوستی کروائیں۔ عثمان شرمیلے انداز میں میری ساس کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اپنے دیور عثمان کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ میں نے کہا، تم لڑکے ہو کر اتنے شرمیلے ہو، میں تمہاری بھابھی ہوں، بالکل تمہاری بڑی بہنوں جیسی، تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اس پر عثمان نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر بات میں سر ہلایا۔ میں گھر میں سب سے بڑی بہو تھی، سکندر سے چھوٹی ان کی 2 بہنیں تھیں اور ان سے چھوٹا عثمان تھا۔ سکندر بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر تھے اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ عثمان سے دوستی کا پہلا قدم میں نے بڑھایا تھا، اگرچہ وہ 16 سال کا تھا لیکن اونچے قد اور مضبوط جسم کی وجہ سے عمر سے بڑا لگتا تھا۔ شام کو میں اس کے کمرے میں چلی جاتی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ جلد ہی وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا اور میرے کمرے پہ بھی بلا جھجک آنے لگا۔ ایک روز جب میں عثمان کے کمرے میں گئی تو وہ ٹیپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً ویڈیو بدل دی اور ایک دم گھبرا سا گیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور مجھے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر شک سا ہوا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے بڑے پیار سے پوچھا، عثمان تم ٹیپ پر کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ پریشان ہو کر نفی میں سر ہلانے لگا اور بولا، کچھ بھی نہیں بھابھی۔ میں نے کہا، اچھا وہ ویڈیو ذرا دوبارہ لگا کر دکھانا، میں بھی تو دیکھوں کہ میرا دیور کہاں مصروف تھا۔ پر جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو دوبارہ لگائی، اسے دیکھ کر تو میں نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں اور میری روح کانپ کر رہ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ عثمان تم یہ کیا دیکھ رہے تھے؟ میں بتاؤں آج ہی تمہارے بھائی کو؟ عثمان فوراً بدحواس ہو گیا اور بولا کہ بھابھی پلیز آپ بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ پھر میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، عثمان تم یہ بتاؤ کہ تجھے یہ سب دیکھ کر نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں اتنی خوفناک چیزیں دیکھتے ہو تم؟ وہ ڈراؤنی مووی دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر میں خود ڈر گئی تھی۔ عثمان نے فوراً معذرت کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ شروع میں میرا سسرال میری توقعات کے عین مطابق لگا۔ میری نندیں بھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں جس کی وجہ سے میں خود کو بے حد خوش نصیب محسوس کرنے لگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں اور میں ایک ایسی آزمائش میں پھنسنے والی ہوں جس کا تصور بھی کسی عورت کو لرزا دے۔ میں میکے میں سب سے چھوٹی تھی جس کی وجہ سے مجھے زیادہ توجہ نہیں ملی۔ میرے بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور جب میں ان کے پاس جاتی تو وہ کہتے کہ تم چھوٹی ہو، بڑوں میں کیا کام ہے۔ اس رویے نے مجھے اکیلا پن محسوس کرایا۔ عثمان کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کی محرومی یاد آ جاتی، شاید اس لیے میں نے اس سے ایک خاص قربت محسوس کی اور اسے اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ میں اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی اور اس کے ساتھ گیم کھیلتی تاکہ اسے کسی بھی طرح اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ایک دن جب میں اپنے شوہر سکندر کے آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، عثمان میرے کمرے میں آیا اور میرے میک اپ میں سے پنک لپسٹک اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، بھابھی یہ لگائیں، یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مان لی، لیکن اچانک اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور بے ساختہ میرے گلے لگ گیا۔ اس لمحے میں گھبرا گئی اور فوراً خود کو اس سے پیچھے کر لیا۔ پھر عثمان نے مجھے کہا کہ بھابھی میں تو آپ کی بڑی بہن سمجھ کر یہ سب کرتا ہوں، مگر آپ تو پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں، برا لگا ہو تو معذرت۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں خود کو کوسنے لگی کہ تو نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ معصوم تو مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتا ہے لیکن میری سوچ بری ہے، لہذا اس کو معصومیت دیکھ کر مجھے اپنی غلط سوچ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ لہذا پھر اگلے روز میں نے اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہمدردانہ رویہ برقرار رکھا، لیکن اب اس کا میرے اتنا قریب آنا
आना, बेतकल्लुफ़ी से मुझे छूना और बात करते हुए चेहरे के करीब आना मुझे बेचैन करने लगा था। हालांकि मेरा दिल कहता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं शैतान के बहकावे में आकर खुद को ये यकीन दिलाती कि वो अभी छोटा है और मुझे बड़ी बहन समझकर मोहब्बत करता है। उस सब के दौरान मैं अपने ख्यालात और जज्बात की कशमकश में मुब्तला हो गई थी। ज़ाहिरी तौर पर मैं दुबली पतली सी लड़की थी और उस्मान मेरे साथ खड़ा होने पर कद में मुझसे चंद इंच ही बड़ा लगता था। जब वो स्कूल से वापस आता तो मैं अक्सर खाना बनाने में मसरूफ़ होती थी और जैसे ही वो अंदर आता मेरे साथ लग जाता, जिससे मुझे उलझन होने लगती। गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से शराबूर चूल्हे के सामने खड़ी होती तो उसे पीछे हटने को कहती कि उस्मान, मुझसे ज़रा दूर रहा करो, अभी देख नहीं रहे थे कि मैं रोटी बना रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो पीछे हट जाता और कहता, आप हर वक्त इतना काम क्यों करती हैं, कभी तो खुद को आराम का मौका दें। उसके बात बदलने का अंदाज भी अजीब था, लेकिन मैं हमेशा यही ख्वाहिश रखती थी कि घर के हर फर्द के दिल में मैं अपना एक मुकाम बनाऊं। इसलिए मैं उसकी ऐसी बातों पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा कर कहती, जब तुम्हारी बेगम आएगी तो फिर मैं छुट्टी कर लूँगी और वो सब काम करेगी। मेरी ये बात सुनकर वो जवाब देता, मुझे तो बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो मुझे बड़ी तवज्जो से देखता और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। पहली बार उसकी नज़रों में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरे अंदर सनसनी सी दौड़ने लगी। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक किया, क्योंकि उसकी नज़रें अब मुझे बेचैन करने लगी थीं। वो मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से साफ करने लग गया और मैं घबरा कर पीछे हट गई और शेल्फ के साथ लग गई। फिर वो बोला, भाभी, मेरा दिल चाहता है कि आप एक दिन भी काम ना करें, आप रानी बनकर रहें, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी धड़कन तेज़ हो गई। ऐसी तारीफ तो कभी मेरे शोहर सिकंदर ने भी नहीं की थी। फिर अचानक उसके चेहरे के तासरात बदल गए और मुझे कहने लगा, भाभी, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो भी तो घर का काम सीखें। उसने बात का रुख बदल लिया और मैंने भी उसे सख्ती से कहा, जाओ यहाँ से अपने कपड़े तब्दील करो, मैं खाना लगा रही हूँ। जब वो किचन से निकला तो मुझे सुकून का सांस लेना नसीब हुआ। फिर अगले कुछ दिन में मैंने हर वक्त उस्मान से कतराने की कोशिश की, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे बेचैन करने लगी थी। एक दिन मैंने सिकंदर से बात की कि देखो सिकंदर, उस्मान अब बड़ा हो रहा है, इसे समझाने की ज़रूरत है कि घर में किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। सिकंदर, उसकी हरकतें अब भी बच्चों जैसी हैं और वो मम्मी की तरह मुझे भी अपने गले लगा लेता है। मुझे उसका ऐसा करना बहुत गैर मुनासिब लगता है। ये सब मैंने सिकंदर को इसलिए बताया क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि सिकंदर उसे खुद ही समझा ले, क्योंकि अगर मैंने खुद उस्मान को रोका तो घर वाले इस बात को गलत रंग दे सकते हैं कि ये कल की आई हुई लड़की घर में फासले पैदा कर रही है। मगर बजाय मेरी बातों को संजीदगी से लेने के उल्टा सिकंदर मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, बेगम, तुम भी ना क्या बातें करती हो, वो छोटा सा बच्चा है, तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार करता है। सिकंदर ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया और मेरी ये फिक्र वहीं की वहीं रह गई। मैं उसी कश्मकश में थी कि ये सब किससे कहूँ। ठीक है, उस्मान मुझे बहन समझता है और मैं भी उसे छोटा भाई समझती हूँ, मगर उसकी नज़रें और बातें काफ़ी अजीब होती जा रही हैं। हालांकि ये बातें तो उसकी माँ या बहन भाइयों को उसे समझानी चाहिए थी कि भाभी का रिश्ता अगरचे बहन जैसा होता है, मगर उस रिश्ते की इस्लामी नुक्तिया नज़र से कुछ हदूद भी होती हैं। बिल आखिर मैं अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जमा करके ये डरते डरते अपनी सास के आगे बयान कर ही दी, लेकिन वो हंसते हुए कहने लगी, तुम तो हो ही इतनी अच्छी कि सिकंदर के साथ साथ हम तो खुद भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो ये दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हो। खैर, सास की बात सुनकर भी मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई, क्योंकि उन्होंने इस संजीदा बात को हंसी में उड़ा दिया था। सास को इस लापरवाही और मेरे शौहर का मेरी बात को गैर संजीदा लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने दिल में सोच लिया था कि अब मैं खुद ही उस्मान से फासला रखूंगी। मैंने उसके कमरे में जाना छोड़ दिया और उससे ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। उस्मान ने भी जब मेरी इस तब्दीली को महसूस किया तो एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मसरूफियात बढ़ गई हैं।
मेरी ये बात सुनकर वो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, आपके चेहरे पर ये जो होंठ की एक साइड पर तिल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि देखता ही रहूं। मैंने उसे नरमी से समझाया कि उस्मान, तुम एक जवान लड़के हो, बराए मेहरबानी मुझे तुम इतने गौर से मत देखा करो, ये बहुत बुरी बात है। बहनों से ऐसे बातें नहीं करते और ना ही उन्हें यूं देखते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो संभल सा गया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत में अजीब सी सुस्ती थी और सर में चक्कर भी महसूस हो रहे थे। जब सिकंदर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खुशखबरी ने तो घर में खुशी की लहर दौड़ा दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे और डॉक्टर के मशवरे पर मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट दिया गया। किचन का सारा काम मेरी सास और नंदों ने संभाल लिया था और मेरा ज़्यादा वक्त कमरे में ही गुजरता था। एक रात मेरे शोहर और सास नंदे एक शादी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। शादी लाहौर में थी और मेरे लिए सफ़र मना था, इसलिए मैंने घर पर रहने का फैसला किया। उस्मान ने भी न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुकने की इजाज़त ले ली और कहने लगा, कल मेरा स्कूल टेस्ट है, मैं आज नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि अपने मैके चली जाऊं, लेकिन उस्मान के घर में होने की वजह से मेरी सास ने कहा कि मैं घर पर ही रुक जाऊं, वो लोग रात तक वापस आ जाएंगे। शादी तो शाम तक ख़त्म हो जानी थी और मैं भी ये चाहती थी कि सब मुझसे खुश और राज़ी रहें, जो कि किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी सास की बात कबूल की और फिर रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। दिन भर की थकन की वजह से मुझे नींद जल्दी आने लगी थी और उसी दौरान सिकंदर की कॉल भी आ गई। सिकंदर ने बताया कि हम लाहौर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक काले बादलों और तूफ़ानी बारिश की वजह से सफ़र करना नामुमकिन सा हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हम सुबह ही वापस आएंगे। फिर वो मुझसे कहने लगे कि उस्मान को तूफान और बादलों की आवाज़ से खौफ आता है, इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लो ताकि वो डर न जाए। ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने जवाब दिया कि उस्मान अब इतना छोटा भी नहीं कि बारिश से डर जाए और उसका मेरे कमरे में सोना मुझे मुनासिब नहीं लगता। इस पर सिकंदर ने सख्ती से कहा कि हर वक्त उसके बड़े हो जाने की बात छोड़ दो, वो अभी बच्चा है, उसकी जहनियत बच्चों जैसी है और जो कह रहा हूँ वो करो। सिकंदर ने बहस को ख़त्म करके फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर भी उस्मान को कमरे में नहीं बुलाया और लाइट बंद करके सो गई। रात के किसी पहर बादलों की ज़ोरदार आवाज़ से मेरी आँख खुल गई, जैसे बिजली गिरी हो, साथ ही लाइट भी चली गई थी। उसी लम्हे मेरे दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई, जिससे मैं डर के मारे उछल गई। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कौन है, तो उस्मान की आवाज़ आई, भाभी जल्दी दरवाज़ा खोलें, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में बमुश्किल दरवाजे तक पहुंची। मेरी कमर में दर्द हो रही थी और कुछ कमज़ोरी भी महसूस कर रही थी। दरवाज़ा खोला तो उस्मान हाथ में टार्च लिए खड़ा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसने कहा कि वो डरा हुआ है और चूंकि सिकंदर ने भी उसे कमरे में सुला लेने का कहा था, मैंने उसे अंदर आने दिया। उस्मान ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और कहा कि वो खौफज़दा है। वो जल्दी से मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गया, जैसे कोई छोटा बच्चा खौफ में अपने बड़े से तसल्ली चाहता हो। मैंने उसे तसल्ली दी कि उस्मान, मैं हूँ, सब ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मुझ पर मज़ीद मजबूत होने लगी और मुझे यूं लगा जैसे खौफ की बजाय इस जे दिल में कुछ और था जो उसे मेरे करीब कर रहा था। अचानक उसके हाथ मेरी कमर पर चलने लगे, जिससे मुझे झटका सा लगा। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर चलने से मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन उसे धकेल कर खुद से दूर किया तो अचानक लाइट भी आ गई और बारिश का शोर भी थम चुका था। उस्मान के चेहरे के तासरात अब यकसर बदले हुए थे, जैसे वो खौफज़दा नहीं बल्कि किसी और जज्बे से मगलूब था। फिर मैंने उसे कहा, उस्मान प्लीज़ जाओ अब यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश भी रुक चुकी है और तूफान भी थम गया है। लेकिन वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन जो तूफान मेरे अंदर लगा हुआ है वो कैसे थमेगा? एक बार
اگر وہ تھم جائے تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ عثمان مجھے کسی بھی طرح 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں اور نظریں سب کچھ بچگانہ نہیں بلکہ مختلف اور معنی خیز تھی۔ جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے سختی سے کہا، عثمان یہ تم کیا فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ بڑی بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو بس 2 ہی بہنیں ہیں۔ آپ کو تو میں پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگا تھا۔ آپ کے قریب آنے کے تو میں ہر وقت بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میری جان، آپ کی قربت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی نے انگارے ڈال دیے ہوں۔ عثمان کی باتوں اور رویے میں اس وقت ایک ہوس زدہ مرد جیسی جھلک تھی۔ میں نے غصے سے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تم اپنی ماں جیسی بھابھی پر نظر رکھتے ہو؟ میری بات پر وہ بالکل بے خوف انداز میں میرے سامنے کھڑا رہا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو کبھی ماں نہیں سمجھا، بلکہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کئی بار تو اپنی بات کہنے کی کوشش بھی کی ہے، شاید آپ بھول گئی ہیں۔ اس کی یہ باتیں اور بے باکی سن کر میرا دل مزید ڈوبنے لگا۔ اتنے میں اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور مجھے زبردستی بڑی مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں نے اس سے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ مجھے اپنا آپ اس کے آگے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے کی بتی بجھتے ہوتے میری بھی اینٹ سے اینٹ بج چکی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میرا اس سے خود کو چھڑوانا اور احتجاج کرنا بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ اس نے ساری رات بار بار مجھے اتنی شدت سے چوٹیں پہنچائیں کہ نہ جانے وہ کب کا رکا ہوا تھا۔ وہ رات میرے لیے ایک جہنم بن کر آئی تھی اور میں اس جہنم میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس جان لیوا شدتوں میں بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اتنے میں عثمان نے ایک بار پھر کمرے میں آ کر زبردستی مجھ بے جان کو اپنے اثار میں لیا اور میرا پہلے سے بھی زیادہ برا حال کر دیا، اور میں اس بار اس کے سامنے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر پائی۔ اب میں سسکیاں لے کر بیڈ پر پڑی بے جان لاش بن کر رو رہی تھی اور عثمان بڑی ڈنائٹ سے میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھو بھابھی، اگر آپ نے کسی سے بھی اس بارے میں کچھ کہا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ جبکہ عثمان کی گھناؤنی حرکت کے بعد میرے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت بھر گئی تھی کہ مجھے اب اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی۔ اس دوران ایک طرف میرے جسم میں درد تھا، دوسری طرف میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے غصے میں عثمان کو کہا کہ وہ فوراً میری نظروں سے دور ہو جائے اور کہا کہ میں اب تمہاری ہر حرکت سکندر، اس کی ماں اور بہن کو بتاؤں گی جو اسے بچہ سمجھتے تھے۔ مگر عثمان بالکل نہیں گھبرایا، کہنے لگا، آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیجئے گا، مگر لوگ آپ ہی کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اس گھر کا بیٹا میں ہوں، مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو زبان باندھ رکھیے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو کاٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عثمان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی چیز لے کر اس بدنیت انسان سے بدلہ لے لوں جس نے رشتے کا تقدس پامال کر دیا۔ اتنے میں باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی اور میں اپنے خوف اور غصے کے باوجود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سکندر، میری ساس اور نند دروازے پر کھڑے تھے۔ میں فوراً سکندر کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت بھی میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور مجھے چکر آنے لگے۔ سکندر اور سب گھر والے پریشان ہو گئے اور بالآخر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور پھر جب ہسپتال پہنچ کر میری آنکھیں کھلی تو سکندر میرے پاس بیٹھے تھے اور میری ساس سرہانے بیٹھی تھی۔ اتنے ساس نے کہا، جب میں نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا تو تم کیوں سارے گھر کا کام کر رہی تھی؟ اللہ نے بال بال بچایا ہے تمہارے بچے کو، اب میں تمہیں بستر سے اٹھنے نہیں دوں گی۔ مجھے شک تھا کہ عثمان نے جھوٹا بہانہ بنا کر انہیں یہ کہانی سنائی تھی۔ میں نے سچ بولنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر جیسے ہی میں کچھ کہنے لگی عثمان اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ عثمان نے کہا، ماں، میں سمجھتا تھا بھابھی بہادر ہیں، مگر یہ تو بارش سے اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے پوری رات الٹا نہیں تسلی دینا پڑی۔ سب نے عثمان کی بات کو معمولی انداز میں لیا اور
न जाने सोचा कि घर जाकर सिकंदर को हकीकत बताऊंगी। जब हम घर पहुंचे और मैंने सारी बात सिकंदर को बताई तो उसने शदीद गुस्से में मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे मासूम छोटे भाई पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। वो अभी बच्चा है, ऐसी बातें उसके दिमाग में कैसे आ गई? सिकंदर ने मजीद कहा, मुझे सब मालूम है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा। अगर तुम मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। तुम कौन होती हो मेरे छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मैं सिकंदर को फटी फटी नज़रों से देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वही शख्स है जो कभी मुझसे बेपनाह मोहब्बत का दावा किया करता था। शायद उनकी मोहब्बत सिर्फ इस वक्त तक थी जब तक मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती रही और उनके भाई की बदतमीजियां बर्दाश्त करती रही। मुझे अपनी हकीकत और हैसियत का अच्छी तरह एहसास हो चुका था। मेरे अब तक के तमाम एहसानात और खिदमत बेमानी हो चुके थे, क्योंकि सिकंदर को अपने भाई पर यकीन था, मुझ पर नहीं। फिर मैंने खामोशी से अपना सामान बांधा और घर से जाने का फैसला कर लिया। सिकंदर ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मेरी सास इन तमाम बातों से बेखबर थी और मुझे बैग उठाए देखकर हैरानी से पूछने लगी, कहाँ जा रही हो बहू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर अलबत्ता कहने लगे, जाने दो इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, मैं के जाकर शायद अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोशी से घर से निकल आई, क्योंकि ये कोई आम सी लड़ाई नहीं थी जिसे मैं भूल सकती। मैंने रास्ते से एक टैक्सी ली और अपने वालिदैन के घर पहुंच गई। जब मैंने सारी हकीकत अपनी वालदा को बताई तो वो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना था? हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अजनबी यानी गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या ये हुक्म देवर के लिए भी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है, यानी देवर का अपनी भाभी के पास तन्हाई में जाना मौत की तरह खतरनाक और नुकसानदेह है। इस हदीस का मतलब ये है कि देवर को करीबी रिश्तेदार समझकर बेतकल्फ़ी और पर्दे के मामले में लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि देवर और भाभी के दरमियान बेतकल्फ़ी और मुलाकातों से बड़े बड़े फितनों का अंदेशा होता है। तुमने उसे करीब कैसे आने दिया? तुम्हें शुरू से ही उसके साथ सख्त रवैया रखना चाहिए था। अगर ये बात तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हें समझाती कि कैसे रहना है। तुमने अपना घर अल्लाह के अहकामात को छोड़कर दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में बर्बाद कर लिया। मेरी माँ ने अफसोस से कहा, मगर क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने अपनी मुश्किलात सिकंदर और अपनी सास से भी बयान की थी, मगर किसी ने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर और भाभी के बीच फासला ज़रूरी है। एक दिन मुझे एक नए नंबर से कॉल मौसूल हुई। वो उस्मान की आवाज़ थी, जिसे मैंने फ़ौरन पहचान लिया था। वो मुझे गमगीन लहजे में कहने लगा, खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं। भाभी, आइंदा कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे बुरी वीडियो दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे मोबाइल पर वीडियो बोलते देखा था, उस वक्त मैं डरावनी फिल्म नहीं बल्कि यही सब देख रहा था। ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर दें और वापस आ जाएं। आप बहुत अच्छी और नेक दिल खातून हैं। आप जैसी बीवी मेरे भाई को सारी उम्र भी नहीं मिल सकती। मगर मैंने अपने काबिल नफ़रत देवर को जवाब दिया कि तुमने जो कुछ भी किया था वो गलती नहीं बल्कि एक बहुत संगीन गुनाह था, और उस संगीन गुनाह पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारे घर वालों का भी कसूर है, जो तुम्हें बच्चा समझकर आंखें बंद किए रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक लूंगी और अब मैं तुम लोगों की मनहूस शक्ल तक नहीं देखना चाहती। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद मेरे आंगन से बेटी पैदा हुई और उसके कुछ अरसे बाद ही बेटी को
कुछ होश आया तो मैंने बेटी को उसके बेहस और अहमक बाप के हवाले करके उसे तलाक ले ली। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। फिर जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई तो कुछ अरसा बाद ही अल्लाह ने मुझे एक बहुत ही नेक और फरमाबरदार शौहर से नवाज दिया, जिसका सिर्फ एक बेटा था और उसकी बीवी दौरान डिलीवरी वफात पा गई थी। अल्लाह ने फिर से मेरी ज़िंदगी को शौहर और औलाद की सूरत में बेशुमार नेमतों से नवाज दिया। मैं अपनी उस आप बीती के ज़रिए तमाम देखने वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि औरत को शादी के आगाज़ में ही उसके करीब रहने वाले जितने भी नामहरम हैं उनके साथ अपनी हदें वाज़ह कर देनी चाहिए और बाकी घर वालों को भी ये हक बनता है कि वो अपने बच्चों को रिश्तों की हदूद का शऊर सिखाएं, ताकि बहुत से हंसते बसते हुए घरों को उजड़ने से बचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू लव स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।